Good morning, students. So continuing with the previous lecture, that is agricultural policies and programs during plans, right? So under that section, we were discussing the various agrarian reforms undertaken by the government, so as to achieve the development of agriculture. So these agrarian reforms can be divided into three categories, which are land reforms, also known as institutional reforms, technological reforms, and general reforms. ठीक है? तो land reforms, they relate to the pattern of ownership. This I had discussed yesterday. ठीक है? Various land reforms undertaken by the government after independence. Number one, abolition of zamindari system or abolition of intermediaries. ठीक है? There used to be intermediaries between the government एंड द टिलर ऑफ द सॉइल, फार्मर, और गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरमीडियरी था जिसको हम जमींदार कहते थे. ठीक है? वो जमींदार टिलर को एक्सप्लॉइट करता था. टिलर लैंड का कभी ओनर नहीं बन पाया और ओनर लैंड को टिल नहीं करता था. ठीक है? सो दिस वाज वन ड्रॉबैक ड्यू टू विच द टेनेंट और द टिलर वाज exploited by the zamindars. So our main focus after we got independence was to develop agricultural sector, and for the development of agricultural sector, it was must to give ownership to the tiller so that he feels motivated, induced to make improvements on his piece of land. So various legislatures in different states were passed regarding to the abolition of zamindari system. Then rent was regulated. Earlier there was no regulation, no provision, no legislation regarding how much rent is to be charged, regarding the maximum rent to be charged. So the owner would exploit the tenant and extract as much as half of the produce as rent. But now legislations were passed, rent was regulated, in different states different provisions were passed, but overall rent was fixed between 1/3 to 1/6 of the produce. इससे ज्यादा ओनर जो है वो टेनेंट से रेंट नहीं चार्ज कर सकता था. Next bit is ceiling on land holding. This I was explaining yesterday, that upper limit was fixed on the acquisition of land. Okay. Now it was witnessed that there was unequal distribution of land, inequality was there in the distribution of land. तो जहां पे लैंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वहां पर इनकम इनइक्वालिटीज आना एविडेंट है. ठीक है? तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इक्विटी अचीव करने के लिए हमने एक लेजिस्लेचर पास किया. वी पुट अ मैक्सिमम लिमिट ऑन दी होल्डिंग ऑफ दी लैंड. ठीक है? हमने कहा कोई भी फार्मर जो है इतने एकड़ से ज्यादा लैंड एक्वायर नहीं कर सकता. Ceiling was imposed on the present acquisition as well as on the future acquisition of the land. ठीक है? तो प्रेजेंटली अगर किसी के पास लेटर से गवर्नमेंट ने सीलिंग फिक्स की है 25 एकड़ की, तो अगर किसी का 25 एकड़ से ज्यादा लैंड है तो उससे ओवर एंड अबव लैंड विल बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड उसके बदले ऐसा नहीं है कि लैंड हड़प लेगी गवर्नमेंट. ऑब्वियसली उनको कुछ बॉन्ड्स वगैरह दे दिए गए, वो क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था कि वो एकदम से फार्मर्स को लैंड के बदले उनको पैसे दे सके. तो उनको बॉन्ड्स दे दिए गए जो कि कुछ सालों के बाद मैच्योर हो जाने थे. ठीक है? तो और ये लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लैंडलेस ओनर्स में. उनको भी फ्री में नहीं दिया गया लेकिन कम रेट्स में दिया गया, और एक काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वर फिक्स्ड कि वो उनके लिए ये इंस्टॉलमेंट्स देना इजी हो जाए. ठीक है? सो फ्यूचर एक्विजिशन मतलब अगर आप फ्यूचर में भी लैंड एक्वायर करना चाहते हो तो इससे ज्यादा आप लैंड एक्वायर नहीं कर सकते हो. ठीक है? नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म अंडरटेकन वाज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग. British subdivision of land, fragmentation of land. This was another problem relating to agricultural sector in India. As I told you, say this is the whole village, and my 1 acre land is over here and 1 acre land is over here.
So lot of land gets wasted in making boundaries of the land. Lot of time is wasted for the supervision, and moreover, because both the lands are small pieces, it's not possible for the farmer to you know make use of scientific means of cultivation on small pieces of land. So this was one problem. बेटे जो मेजर्स उठाए गए, रिफॉर्म्स अंडरटेक किए गए, वो प्रॉब्लम्स को देखते ही किए गए, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हमारी यही थी कि लैंड वाज सब डिवाइडेड, लैंड वाज फ्रेगमेंटेड। तो हमने क्या किया, हमने फार्मर से जो उसका फ्रेगमेंटेड लैंड था, ठीक है, ये जो दोनों टुकड़े हैं जो अलग अलग कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं, ये दोनों टुकड़े उससे वापस ले लिए और उसका एरिया मेजर कर लिया। लेटर से 1+1 2 एकर्स का लैंड है, और कहीं एक और जगह पे उसको ये 2 एकर्स का लैंड हमने अवेल करा दिया, उसके नाम का कर दिया, ठीक है। तो इससे जो सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उसकी होल्डिंग्स जो थी देवर अनइकोनॉमिक। अनइकोनॉमिक क्यों थी? अनइकोनॉमिक मींस प्रॉफिटेबल नहीं थी। क्यों? वहां पे एक तो लैंड वेस्ट हो रहा था, सुपरविजन में टाइम वेस्ट हो रहा था, अलग अलग उसको इनपुट्स लाने पड़ रहे थे, जिस कारण से ज्यादा इनपुट्स लग रहे थे, वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, अलग अलग जगह जाके उसको पानी देना पड़ता था, ठीक है, और साइंटिफिक मीन्स ऑफ कल्टीवेशन का वो इस्तेमाल नहीं कर पाता था, लैंड एरिया बीइंग स्मॉल। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। ओके बेटे, अटेंडेंस ले लेना वंशिका आज की, और कल जिसको मैंने 12th बी की बोला था वो बच्चा भी ले लेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटे, कोऑपरेटिव फार्मिंग। व्हाट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग? लेट मी सेट द ओके फाइन, जस्ट वेट। Why students are joining so late bete? Okay, so another is cooperative farming. Cooperative farming, even though इसमें government encouraged cooperative farming. Cooperative farming में क्या होता है, जैसे this is a village and this is the land of A farmer, B farmer, C farmer, D farmer, E farmer, ठीक है। So अब ये अपने अपने लैंड पे अलग अलग खेती करते हैं, लेकिन सबके लैंड एरिया स्मॉल है, जिस कारण से ये साइंटिफिक मींस ऑफ कल्टीवेशन यूज नहीं कर सकते। अगेन बाउंड्रीज में लैंड वेस्ट चला जाता है, पानी की टर्न्स आने में इनमें लड़ाइयां झगड़े होते हैं एंड ऑल दैट। सो गवर्नमेंट एनकरेज्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। गवर्नमेंट ने क्या कहा, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन लैंड, यू हैव योर टाइटल टू दिस लैंड, आपके पास ये लैंड की ओनरशिप है, इसको हम कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, आप अपने लैंड के ओनर रहेंगे। लेकिन आप ऐसे करिए, ये जो बीच में बाउंड्रीज हैं वो हटा दीजिए, ठीक है। अब ये लैंड जो है, इवन दो A B C D and E they remain owner of their respective pieces of land, but now they can do collective farming on this piece of land, ठीक है। तो लेटर से किसी का लैंड एरिया बड़ा है, किसी का स्मॉलर साइज का है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट क्या होगा, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बन जाएगी। वो एग्जीक्यूटिव कमेटी सिटी में जाके सीड्स, फर्टिलाइजर, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो ले आएगी। इससे पहले क्या होता था, सब फार्मर को अलग अलग जाना पड़ता था सिटीज में अपने इनपुट्स लाने के लिए, लेकिन अब क्या होगा, अब एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो जाएंगे, सबके लिए इकट्ठे सीड्स या बाकी सारे इनपुट्स ले आएंगे। उससे क्या होगा बेटे, क्योंकि वो परचेजिंग ज्यादा कर रहे हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड दे विल गेट इनपुट्स एट चीपर रेट, कम प्राइसेस पे मिल जाएंगे। जितना खर्चा आएगा प्रोपोर्शनेटली वो डिवाइड कर लेंगे। जैसे किसी का 1 एकड़ लैंड है और किसी का 2 एकड़ लैंड है, उस हिसाब से उसका खर्चा डबल हो जाएगा। इस तरह से फिर वो मिल बांट के, अगर उनको ट्रैक्टर की जरूरत है, ट्रैक्टर हायर कर लेंगे, उसका रेंट आपस में डिवाइड कर लेंगे। फिर हार्वेस्टिंग का सीजन आ गया और थ्रेशर चाहिए, थ्रेशर उन्होंने हायर कर लिया, उसका जितना खर्चा आया वो आपस में डिवाइड कर लिया। उसके बाद इकट्ठी उन्होंने
प्रोड्यूस इकट्ठी की, ठीक है, और उसको इकट्ठा करके सिटी में एक ही ट्रैक्टर में डाल के या एक ही ट्रॉली में डाल के उसको बेचने के लिए चले गए। तो नाउ बिकॉज दे आर नॉट सेलिंग देयर इंडिविजुअल पोर्शन, their bargaining power again will be strong, right? And they will be able to fetch good price, remunerative prices for their output. So once they have sold it, transportation cost का भी खर्चा बचा, ठीक है। So once they have sold it, proportionately ये आपस में आकर अपना शेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। So cooperative farming was also encouraged by the government. लास्ट बेटे भूदान मूवमेंट, ये किसी बुक में होती है, किसी बुक में नहीं होती, सो यू राइट इट डाउन। भूदान, हियर भू वर्ड्स, वर्ड मीन्स भूमि, लैंड, ठीक है। दान, दान आपको पता ही है, चैरिटी। सो एट दैट टाइम देयर वाज अ सोशलिस्ट नेम्ड एज विनोबा भावे, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम। हिंदी लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें विनोबा भावे की काफी स्टोरीज भी आती हैं। सो विनोबा भावे ने लोगों को इनकरेज किया 1951 में कि वो उनके पास जितना इतना सरप्लस लैंड है, रिच लोगों को बोला कि आप अपना लैंड का कुछ हिस्सा गरीब फार्मर्स को, लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। So this Bhudan movement was started by Vinoba Bhave, ठीक है। So बेटे due to these reforms, जो ये रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने अंडरटेक किए, उसके करके हमें काफी फायदा भी हुआ। There were certain achievements of this agrarian reform. Can you tell me what would have been the achievement? Anyone of you? जो हमने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, obviously they were to address the various problems being faced by our agricultural sector. So those problems were addressed. Can you tell me what would have been the achievements of agrarian reforms? Okay. चलो उससे पहले हम टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी डिस्कस कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स वर लाइक मेकिंग यूज ऑफ HYV सीड्स। ये हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि 1960s में आई थी, दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, दैट वाज ड्यू टू द HYV सीड्स। गवर्नमेंट encouraged the use of HYV seeds instead of traditional seeds जो कि हमारे साइंटिस्ट ने बनाई थी, ठीक है। तो इन सीड्स के इस्तेमाल से भी हमारी प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ी। Then the making use of chemical fertilizers, earlier we would make use of manure, ठीक है, खाद का इस्तेमाल किया जाता था, manure का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जब ये HYV सीड्स का इस्तेमाल किए जाने लगा, एक्चुअली इट वाज अ पैकेज। HYV सीड्स अगर आपने सो करनी है तो सॉइल को केमिकली ट्रीट करना ही पड़ेगा, उसके बिना प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, use of insecticides, pesticides, scientific means of cultivation, tubewells, tractors, threshers, ठीक है, these were undertaken. So these are the technological reforms being undertaken by the government to develop agricultural sector. Coming to the general reforms, so many general reforms were also undertaken by the government. First one being expansion of irrigation facilities. बेटे जब एक फार्मर HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है तो इसके साथ साथ क्रॉप को लार्ज क्वांटिटी में पानी की जरूरत होती है। 1947 में हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, कैनाल्स, टैंक्स, रेनफॉल, ठीक है, these were the means made use of for irrigating our lands. There were no permanent means of irrigation, so government focused on making tube wells, ठीक है। ट्यूब वेल्स का बनाने शुरू किए गए, तो ट्यूब वेल से 24 आवर्स वाटर सप्लाई फार्मर्स के पास रहती थी।
सो जिस करके वो मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न, अर्लियर सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न था, फार्मर वुड ग्रो वन क्रॉप ऑन हिज पीस ऑफ लैंड, रीजन बीइंग जो क्रॉप पानी, मतलब जैसे अगर एक टाइम पे रेनफॉल आती थी, उस टाइम पे रेनफॉल जिस क्रॉप को चाहिए होती थी वही वाली वो क्रॉप ग्रो कर पाता था। अगर वो उसका लैंड बाकी के टाइम खाली, जब वो हार्वेस्ट होगी क्रॉप, उसके बाद लैंड खाली पड़ा हुआ है, तो ना चाहते हुए भी वो क्रॉप ग्रो नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। But now with the permanent means of irrigation, with the establishment of tube wells, canals, ठीक है, so it was possible to adopt multiple cropping pattern. Then बेटे institutional credit, पहले जो source of credit था, farmer would rely on 91% of the farmers would rely on money lenders for taking credit. ठीक है, क्रेडिट बेटे हम सबको पता है, क्रेडिट मींस फंड्स, मनी, पैसे, ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर है चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फंड्स की जरूरत रहती है। और पर्सनल फंड्स कभी भी किसी के पास इतने नहीं होते कि वो अपने बिजनेस या एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके, ठीक है, तो दे नीड टू हैव फंड्स। फंड्स कहाँ से लिए जाएं? There are different sources. We categorize these sources into two main: institutional sources, non-institutional sources. ये हमने 10th में किया है। Institutional sources या formal sources of credit वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, ठीक है, इसमें आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसमें आता है कमर्शियल बैंक्स। Whereas नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं किए जाते, मनी लेंडर्स, महाजन्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बिग फार्मर्स, ठीक है। सो 91% ऑफ द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर was being met by the non-institutional sources at the time of independence, right? So that he, of course, non-institutional sources, they would charge high rate of interest. They could उसको धोखा करके फ्रॉड से लैंड हड़प लेते थे, फार्मर से अंगूठा लगवा लेते थे, और जब वो नहीं दे पाता था, अपना लोन वापस नहीं चुका पाता था, तो वो उसे उसका लैंड हड़प लेते थे। मोरओवर क्रेडिट देने से पहले एक उसको कंडीशन लगा देते थे कि तभी उसको वो लोन देगा अगर वो अपनी सारी की सारी क्रॉप उसको बेचेगा हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स थी जो कि एक फार्मर फेस कर रहा था। नाउ दीज प्रॉब्लम्स वर एड्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट एक्सपेंडेड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज। 1969 में बेटे ये लिख लीजिए, 1969 में गवर्नमेंट ने 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। गॉट इट? गवर्नमेंट ने 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। Thereafter 6 more banks were nationalized in the year 1980. 6 more banks were nationalized in 1980. अब इसका क्या फायदा है बेटे? जो नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं ना, they pay attention, increasing attention to the credit requirements of the agriculture. उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स की काफी ब्रांचेस रूरल एरियाज में भी सेटअप की गई। फिर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली रीजनल रूरल बैंक्स, जिनको हम RRBs के नाम से जानते हैं, 1975 में regional rural banks were established. It's clear from the name, regional rural banks.
These are to satisfy the credit needs of only rural farmers. ठीक है. सो RRBs और कोऑपरेटिव बैंक्स मिलके बहुत अच्छा काम कर रही हैं. आज मेजॉरिटी ऑफ फार्मर जो है वो अपनी क्रेडिट नीड्स इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से फुलफिल कर रहे हैं. देन इन द ईयर 1982 गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड NABARD, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट. ये एक एपेक्स बैंक है. ये जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रूरल एरियाज में क्रेडिट देती हैं उनकी फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है. सो करेंटली अबाउट 70% of the credit needs of rural people are being addressed by the institutional sources of credit. Got it बेटे? Next देखते हैं agricultural marketing. This was again one of the problem we discussed, which was being faced by the agricultural sector, that they were unable to sell off their produce at remunerative prices. There was lack of regulated markets. So government of India focused on this. एक इन्होंने CACP start की, Commission of Agricultural Cost and Pricing. ठीक है. That was set up by the government. Regulated markets were set up by the government to ensure reasonable prices to the farmers for their produce. ठीक है. ये जो मार्केट्स हैं बेटे, रेगुलेटेड मार्केट्स का मतलब गवर्नमेंट ने मंडीज बनाई. अब क्या होता था, ये मंडीज में आड़तीज होते हैं. आड़तीज मींस कमीशन एजेंट्स होते हैं जिनको फार्मर ट्रक के ट्रक अपनी प्रोड्यूस लेके आते हैं और इन कमीशन एजेंट्स को बेच देते हैं. ये कमीशन एजेंट्स फर्दर इनकी प्रोड्यूस को आगे रिटेलर्स को बेचते हैं और जिस प्राइस पे बिक जाती है उसके ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन रख लेते हैं. ठीक है. एज देयर मार्जिन. सो अब आप पूछोगे मैम इससे कैसे इंश्योर होगा कि रीजनेबल प्राइसेस मिले? बिकॉज दीज रेगुलेटेड मार्केट्स, दीज आर सुपरवाइज्ड बाय मार्केट कमिटीज. इनको मार्केट कमिटीज सुपरवाइज करती हैं. मार्केट कमिटीज गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इन मार्केट कमिटी में फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, कमीशन एजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं. ठीक है. तो सारी पार्टी, सारे स्टेक होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं विच इंश्योर कि कमीशन एजेंट कोई भी मेल प्रैक्टिस नहीं कर रहा, स्टैंडर्डाइज्ड वेट का इस्तेमाल कर रहा है. अगर आप देखो रेगुलेटेड मार्केट में नहीं जाओगे, लेटर से आप 10 बोरियां वीट लेके गए तो उसने आपका वो तकड़ी से तोल के कह दिया ये तो 90 किलो है, आप अपनी तरफ से 100 किलो लेके गए, उसने कह दिया 90 kg है. तो फार्मर बेचारा कौन सा वेट करके लाया ना, उसने 90 kg मान लिया और उसके हिसाब से उसको प्राइस मिल गए. लेकिन अब ये जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं बेटे, वहां पर स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स लगे होते हैं, पूरी मशीनें लगी होती हैं, उसके ऊपर फार्मर वेट करता है और जो वेट होता है उस वेट के हिसाब से उससे प्राइसेस ले लेता है. ठीक है. कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज भी सेटअप की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी अपने मेंबर्स को रीजनेबल प्राइसेस इंश्योर करती हैं. ओके. लास्ट हियर इज प्राइस सपोर्ट पॉलिसी. So again, this we have studied in our 9th standard. To ensure fair returns to the farmers for their crops, the government has started fixing minimum support prices, MSP, for a number of agricultural commodities like wheat, like rice, like sugarcane. ठीक है. इन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी बनाई है. गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर देती है. लेटर से गवर्नमेंट ने कहा कि 1 क्विंटल वीट का प्राइस 2000 रुपए रहेगा और फार्मर मार्केट में बेचने गया और फार्मर को लगा कि मार्केट में प्राइस जो है 1800 मिल रहा है.
तो फार्मर बड़ा निराश हो गया कि मेरे को तो कोई इसमें प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा 1800 रुपए में, मैं अगली बारी वीट प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा। तो वो डिस्करेज ना हो वीट प्रोड्यूस करने में और उसको अपनी क्रॉप का अच्छा प्राइस मिले, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो 2000 रुपए एमएसपी फिक्स किया हुआ है, गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, मार्केट में 1800 बिक रही है, आप मत जाओ मार्केट, you sell your produce to me. So here the government will buy through its agency FCI, Food Corporation of India, government उससे MSP पे food procure कर लेती है, ठीक है। So these were the reforms undertaken by the government to improve agricultural sector. So there have been its achievements as well as its failures, which we will be discussing tomorrow.